ओम शांति। आज बाबार 21/12/2020 मुरली। आज के बाबार मुरलिर विशेष महाबाक्य बाबा आज सारा मुरलीते एक ही कथा बार बार बोलছেন যে बाबा হচ্ছেন হোলিয়েস্ট অফ দি হোলি। তো যে পরম পবিত্র বাবার কোলে তোমরা এসেছো, তো তোমাকেও পরম পবিত্র হতে হবে। তো ধীরে ধীরে বাবার ঘর অর্থাৎ মধুবনের নিয়ম আরও করা হয়ে যাবে, যেখানে কোনো পতিত আত্মা আসতে পারবে না। অনেক বাচ্চারা বাবাকে বলে, বাবা আমরা তো তোমার কোলে আছি, হোলিয়েস্ট অফ দি হোলি আমরাও হতে চাই, অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র দেবী দেবতা আমরাও হতে চাইছি, কিন্তু কেন আমাদের মনে মায়া এত ফালতু ব্যর্থ চিন্তন নিয়ে আসে, বাজে চিন্তন নিয়ে আসে। তখন বাবা বলছেন যেটা তোমার জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার, দাপর যুগ থেকে তোমরা মায়ার অধীন হয়ে আছো, এই জন্যে মায়া তোমাদেরকে বারবার ব্যর্থ চিন্তন বা অশুদ্ধ চিন্তন তোমাদের মনে নিয়ে আসছে। তো এগুলো আসছে দেহ অভিমান থেকে, তো তোমরা দেহ অভিমানকে ত্যাগ করো। তো যাদের ভিতরে দেহ অভিমান থাকে তাদের ভিতরেই দুর্গন্ধ আসে, আর যারা আত্ম অভিমানী থাকে তাদের দ্বারা সুগন্ধ আসে। তো তোমরা দেহ অভিমানকে ত্যাগ করো। বাবা বলছেন যে ধীরে ধীরে মধুবনের আইন আরও কড়া হয়ে যাবে, কিন্তু এখন বাবা এত কড়া আইন করতে পারছে না। কেন? অনেক আত্মাদেরকে সেবা করতে হয়, তখন তারা বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তো কোনো অফিসার আসলে বাবার সঙ্গে তাদের কথা বলতেই হয়। তো বলছে ধীরে ধীরে এমন সময় আসবে যখন তোমাদের প্রভাব খুব চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে, তখন কোনো অপবিত্র আত্মা বাবার ঘরে আসতে পারবে না। বাবা বলছেন যে সাধু সন্ন্যাসীদেরকে একদিকে রাখো আর একদিকে আমাকে, তো দেখো যে পরম পবিত্র কারা। তো তাদের যে অবস্থা, সাধু সন্ন্যাসীদের অবস্থা, তারা তো রজগুণে এসেছে, আর বাবা তো আমাদেরকে শতপ্রধান বানাচ্ছে। তো বাবা হচ্ছেন পরম পবিত্র, তাই বাবাকে সত্যম শিবম সুন্দরম বলা হয়। তো এইভাবে বাবা আজকে পুরো মুরলি পবিত্রতার উপরে চালিয়েছেন। আসুন আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो, तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। বাবা বলছেন যে তোমরা এখন হোলিয়েস্ট অফ দি হোলি বাবার কোলে এসেছো, তোমাদেরকে মনের মধ্যেও পবিত্র হতে হবে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियाँ क्या होगी। বলছেন যারা হোলিয়েস্ট অফ দি হোলি মানে খুবই পবিত্র বাচ্চারা হবে, তাদের লক্ষণ কি হবে এবং তাদের নেশা কি হবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है, हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते, वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है। বলছে যারা হোলিয়েস্ট অফ দি হোলি বাবার শরণে এসেছে তারা নিজেকে খুবই পবিত্র রাখবে এবং খুশবুদার তারা ফুল হবে। তাদের মনের মধ্যেও কোনো খারাপ চিন্তন কারো প্রতি আসবে না, তাদের দ্বারা কোনো উল্টো কাজ হবে না, এবং তারা সব সময় অন্তর্মুখী হয়ে যাচাই করবে যে আমার মধ্যে দেবী গুণের সুগন্ধ আসছে, তো আমার চোখ কারো উপরে ডুবছে না। তো আজকের মুরলির গান হচ্ছে मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। यह किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले, अभी तो पुरुषार्थी हैं।
यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जाना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा, तो यह भी ऐसे है। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। बाबा बोलছেন যেমন লৌকিক জীবনে কি হয়, একটা বাবার থেকে আরেকটা নতুন বাবার শরীরে কাছে আমরা যাই। তো যেমন মানুষ মারা যায় তখন কি হয়, নতুন মাতা পিতা পায়। তো সেরকম আমরা এখন শিব বাবার কোলে এসেছি, মায়ার কোল থেকে শিব বাবার কোলে এসেছি। তো মায়ার দুনিয়া থেকে আমরা মরে গেছি। तो होलीएस्ट ऑफ होली कौन है और होली कौन है? तो बाबा बोलছেন होलीएस्ट ऑफ दी होली হচ্ছে বাবা, আর এমনি होली माना पवित्र হচ্ছে सन्यासीरा। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है, वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली, तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यह तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे ऊंच ते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं। तो बाबा বলছেন যে তোমাদের এত খুশি বা নেশা থাকা দরকার যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছে, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है। बाप कहते अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना, अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हों। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। বলছে যে যারা বিকারে পতিত হয়ে আছে তারা নিজেকে হোলিয়েস্ট অফ হোলি কি করে নিজেকে টাইটেল দেবে। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक। होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सत्युग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा।
बदबू कोई भी न हो। बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। বলছে দুর্গন্ধ বলা হয় দেহ অভিমানকে। যখন আত্মার মধ্যে দেহ অভিমান ভরে যায় তখন সে বিকর্ম করতে লাগে। তো বাবা বলছেন যে এটাই হচ্ছে দুর্গন্ধ। कुदृष्टि कोई में भी न जाए, ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। বলছে নিজের আত্মাকে দেখো যে আমরা দেবী গুণে ভরপুর আছি। तो जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहाँ सन्यासी कहाँ तुम। तो तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। বলছে নিজেকে বারবার দেখো যে আমি কতটা পবিত্র ফুল হয়েছি যে আমার দ্বারা সবাই জ্ঞানের সুগন্ধ পাবে। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बाकी हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े कहेंगे। यह भी ऐसे है। बाबा তোমরা জানো যে সত্যযুগে তোমরা 16 কলায় সম্পূর্ণ ছিলে, তারপরে যখন ত্রেতা যুগে আসলে তখন ধীরে ধীরে তোমাদের কলা কমতে লাগলো। तो यह भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती हैं। यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज বলছে অনেকের বুদ্ধিতে আসেই না যে আমাকে কে পড়াচ্ছে, জ্ঞানের সাগর। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहाँ सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते तुम हमसे ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है, तो बाप भी कहते हम तुमको पढ़ाते हैं। अब अपना पद जितना बनाने चाहो पुरुषार्थ करो, बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना। बाबा बोलছেন যে আমি তো ব্রহ্মা বাবার শরীরে থাকি, তো আমি তো যখন তখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি। तो ब्रह्मा बाबार शरीर होच्छे शिव बाबार रथ। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, हम तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूँ। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके।
বাবা বলছে যখন তোমরা একদম পবিত্র মানে খুব পবিত্র হয়ে যাবে তখন এখানে কোনো পতিত আসতে পারবে না। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो भिखारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पाँव भी धर न सके। বলছে বাবার ঘর হচ্ছে একদম পবিত্র চার্চ, এখানে কোনো পতিত আসতেই পারে না। परंतु अभी नहीं कर सकते, जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाएं, यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते हैं ना, अभी ना नहीं कर सकते। বলছেন যে পরম পবিত্র বাবা তিনি এখন বাবার ঘরে অনেক আত্মাদেরকে এলাও করছেন, যারা একটু ভিআইপি আছে বা যারা একটু পাওয়ার পজিশনে আছে তো তাদের সেবা করার জন্য বাবাকে একটু লাইট হতে হচ্ছে। কিন্তু তারপরে বাবা বলছে আরও কড়া নিয়ম হয়ে যাবে, কেউ পতিত আত্মা বাবার ঘরে থাকতে পারবে না বা আসতে পারবে না। तो प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वह आते ही हैं रजोगुण में। বলছেন সন্ন্যাসীদেরকে হোলিয়েস্ট অফ হোলি বলা যাবে না, তারা তো দাপর যুগে আসে রজোগুণ স্টেজে। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं। বাবা বলছেন যে কিছু কিছু আত্মা এমন সেন্টারে চলে আসে তারা বাবাকে চিনতেই পারেনি এখন পর্যন্ত, আর তারা কিছু উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলে। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं, तो बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं, मकान भी पहले सतो प्रधान होता है फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो, इमारत बनती जाती है। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, तो यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। বলছে তোমরা সবাই মিলে এখন সত্যযুগে বিল্ডিং তৈরি করছো, অর্থাৎ সত্যযুগ রূপী ভবন বানাচ্ছ। তো বলছে তোমাদের তন মন ধন দ্বারা এবং পবিত্রতা দ্বারা বাবা স্বর্গ বানাচ্ছে ভারতবর্ষকে। तो यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। বলছে কার উপরে কুদৃষ্টি রাখো না, এমন দৃষ্টি রাখো না যে তোমার पदी भ्रष्ट हो जाक। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है।
और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वह होली। বলছে কোনো সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাবাকে তুলনা করা যাবে না। বাবা হচ্ছেন পরম পবিত্র, সত্যম শিবম সুন্দরম, হোলিয়েস্ট অফ দি হোলি। আর সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো বিকারের জ্ঞানও থাকে। তো বাবা বলছেন বাবার মতন পরম পবিত্র কেউ হতেই পারে না। तो तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे। बाबा सत्यजुगे তোমরাও पवित्र होच्छो, किंतु सबार पद एक रकम होबे ना। उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। तो इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है, कितना फर्क है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, अभी सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं, अब बाबा लायक बनाते हैं। तो सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगे। বলছেন কোনো সাধু সন্ন্যাসী বা কোনো সন্ত মহাত্মা দেহ রাখে তখন তাদের শিষ্যরা কি বলে যে উনি মহানির্বাণে চলে গেছেন, উনি মোক্ষ লাভ করে নিয়েছেন। তো বাবা বলছেন যতক্ষণ শিব বাবা পরমধাম থেকে না আসছে এবং সব আত্মাকে গাইড হয়ে না নিয়ে যাচ্ছে, পরমধামের রাস্তা না দেখাচ্ছে, ততক্ষণ কোনো আত্মা উপরে যেতে পারবে না এবং সমস্ত আত্মাকে পুরো পবিত্র হয়ে পরমধাম যেতে হবে। তো বাবা বলছে এসব গপড়া মারে ওরা। तुम कह सकते हो जो समझे इन्हों को कितना फकूर है, ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मज़े की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। বাবুছে তোমাদের ভিতরে খুব খুশি যে এখন আমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। তো चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझें यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी। বলছে ধীরে ধীরে তোমরা সেরকম হয়ে যাবে যেরকম বাবা তোমাদেরকে দেখতে চাইছে, एकदम दुनियार सामने परम पवित्र आत्मा। तो फिर कायदे कानून सब निकालेंगे, जो कोई पतित अंदर आ न सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी, अभी तुम आगे चलो। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदेशीर कहते हैं ना।
पैर में पदम दिखाते हैं ना, तो यह सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते मन मना भव, बाप को याद करो। बाबा बोलছেন যে তোমরা যেখানে যেখানে পা ফেলবে সেখানে বাবার সেবা বেড়ে যাবে এবং সেখানে অনেক আত্মা বাবার পরিচয় পাবে। তো তোমাদের একটা কদম ফেলা মানা পদম গুণা প্রাপ্তি, এই জন্যে তোমাদের প্রত্যেক কদমে পদম দেখানো হয়। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार 1 नम्बर पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। বলছে এমন কোনো কাজ করো না যেটা দিলকে কষ্ট দেবে। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। বলছে দেহ অহংকারের দুর্গন্ধ বের করে দাও। 2 नंबर, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। বলছে এমন দৃষ্টি রাখো না যে তোমার পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আজকের वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। বাবা বলছে যে তোমরা যা খাজানা পেয়েছো বাবা থেকে সেটা আবার সেবায় ইউজ করো, তাহলে আরও পদমের ইনকাম হবে আর এভাবে তোমরা পদমা পদম ভাগ্যশালী হয়ে যাবে। तो हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। বলছে প্রত্যেক সেকেন্ড পদমের ইনকাম জমা করার বরদান ड्रामानुसारे संगम युग के এটা वरदान प्राप्त আছে। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। বলছে এরকম বরদানকে নিজের প্রতি জমা করো আর অন্যের প্রতি দান করো। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। বাবা বলছেন সংকল্প রূপী খাজানা, জ্ঞান রূপী খাজানা, স্থূল ধন রূপী খাজানাকে কাজে লাগিয়ে পদমের ইনকাম জমা করো। क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। बाबा बोलছেন যে এখন যদি 1 টাকাও যদি আমরা বাবার সেবায় লাগাই তাহলে সেটা এক রতনের মতন হয়ে যাচ্ছে। तो इन सर्व खजानों को स्व के प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो बाबा বলছে এই সমস্ত খাজানাকে নিজের প্রতি এবং সেবার প্রতি কাজে লাগাও, তাহলে পদ্মা পদম ভাগ্যশালী হয়ে যাব। স্লোগান है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। বলছে যেখানে দিলের স্নেহ আছে সেখানে সকলের সহযোগ সহজেই प्राप्त हो जाए। ओम शांति।